चेयरमैन इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल हजरतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख सादिक रजाई साहब, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट करगिल काचो इम्तियाज सर, और esteemed चीफ ऑपरेटिंग सर्जन ऑफ द कैंप डॉक्टर अतीक वासुदेव सर एंड हिज टीम, सीनियर मेंबर गार्डियन काउंसिल इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट हाजी असगर अली करबलाई सर, चीफ मेडिकल ऑफिसर करगिल डॉक्टर काचो लियाकत अली खान, एक्सन RMB श्री सादिक अली साहब, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल डॉक्टर अब्बास सर, कंसल्टेंट्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल मेडिकल ऑफिसर्स, डॉक्टर अहमद अली प्रेसिडेंट बाकरिया and his executive members, volunteers of Bakaria and all technical staff associated with the team and media persons. Today we have gathered here to bid a farewell, bid adieu to our esteemed team of doctors, a team who have come here all the way from Gurgaon, Haryana for our poor patients for these 3 days joint replacement surgery camp. As we all know, Bakaria has been conducting such super specialty camps time and again since its inception in 2007. Bakaria Healthcare and Research Center, I hope, and it's evident also, everybody knows about it. It doesn't need any introduction. But still, I want to give you a brief about where we began and where we have reached now. Bakaria Healthcare and Research Center is the very first healthcare organization which got the first state award on Republic Day in our Union Territory of Ladakh, first state awardee. We had a modest beginning in 2007 where we began in a small building of Bakaria Healthcare and Research Center, where we began with just multi-specialty OPDs on every Sunday. It progressed in leap and bounds, and we did multiple multi-specialty camps in far-flung areas. Then we began conducting such super specialty camps, where we have conducted almost all kinds of super specialty camps, including eye surgery, cardiology, psychiatry, cleft lip repair surgery camp, menstrual health and hygiene camp, neurosurgery, gastroenterology, nephrology, pulmonology, all kind of super specialty camps we have conducted till now, and we are conducting it repeatedly time and again. And we had one ambitious program which was a very burning issue in our district, the spread of hepatitis B infection in our district especially. It came in a survey that as compared to the national figure, the prevalence of hepatitis B infection was very high in our district, almost 11%. So we pondered, our team we had a discussion, and we thought we need to find a solution for this. So we came with this mega drive of 100% public screening and vaccination. Usually what happens when mass vaccination happens, there is only vaccination, there is no screening, because screening and vaccination is a very cumbersome procedure and it's very costly also. So people usually they just do a vaccination, they don't see whether the person is infected or not, and they just do only vaccination. What is the drawback of this? Those who are infected, they believe that I am vaccinated, I am now free of the disease, but they are harboring the virus inside them. So to tackle this problem, we thought of first doing the screening, and those who were found negative were vaccinated with the total 3 doses, and those who were found positive, they were put on treatment. It was one of our mega achievements and one of our mega, this activity. Likewise, we do menstrual hygiene, sensitization, and we go to colleges especially, and educational institutions to impart knowledge to the adolescent girls for this menstrual hygiene, and we distribute menstrual cup free of cost also. And we have a dental hygiene camp also, dental hygiene program, which is a running program. Again, we go to schools, we go to gatherings and teach them how to take care of their dental hygiene.
So this camp, now we are on the conclusion of this joint replacement surgery camp. This was the 5th installment in this camp. This camp began in 2018 and were conducted every year almost, except the COVID era, in which we have almost done a knee replacement surgery of more than 150 knees has been replaced till now. Sorry, more than 200. Sir, the mistake. And with this installment of the camp, we started this minimal invasive arthroscopic surgery also in this installment of the camp. So we can see how much beneficial this kind of camp is for the poor patients of Kargil. As we see, if someone goes for a knee replacement to outside, one knee costs around, I suppose, 3.5 to 4 lakhs, if I am correct. But people here are getting almost free. They are getting only they have to pay only this implant cost, which comes to be around 45 to 50,000. So you can imagine how beneficial is this camp, this kind of surgery camp is for our poor patient. And for this we are especially thankful for Dr. Atiq Vasudev sir, who have been coming repeatedly, and he has promised to come in future again also. This is a very commendable job on his part. Without wasting much time, now I would like to call on stage our President, Dr. Ahmad Ali sir, to give a brief about these 2 days of joint replacement surgery camp. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwizu amri ilallah, inna Allaha basirun bil ibad. Izzat Imam, Chairman Imam Khomeini Memorial Trust, Sheikh Sadiq Rajai sahib, respected Additional Deputy Commissioner Kachi Imtiaz sahib, Haji Asghar Ali Karbala'i sahib, Senior Member Guardian Council Imam Khomeini Memorial Trust, आज के हमारे अज़ीज़ मेहमान खुसूसी डॉक्टर अतीक वासुदेवा, वाइस चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स मेदांता यूनिवर्सिटी गुड़गांव, the eminent orthoplastic surgeon, arthroscopic surgeon of India, and his team, Mr. Nadeem from Merrill, the most daring and dynamic person behind these camps since 2014. Chief Medical Officer Kacho Liaquat Ali Khan, Dr. Abbas, our Medical Superintendent District Hospital Kargil, ex-NRNB, Mr. Sadiq, my senior consultants, my colleague doctors, paramedical staff, especially from my OT, my team from Department of Orthopedics District Hospital Kargil, including Dr. Azhar, Consultant Orthopedics, Dr. Roof, Consultant Orthopedics, Dr. Shujaat Ali, Orthopedic Surgeon, and above all, the only person, the man behind the camp, Dr. Asif Hussain. सबसे पहले मैं उनके लिए anesthetist, District Hospital Kargil, consultant anesthetist, Dr. Shazia, my executive body members and volunteers of Baqla Healthcare and Research Center, General Secretary Baqla Healthcare and Research Center, Mr. Vilayat, Field Director Dr. Wulier, In Charge Diagnostic Dr. Imtiaz, दिन रात जो काम करते हैं हमारे जो मेंबर्स हैं, जिसमें हमारे चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं हाजी हबीबुल्ला, जो हमारे किचन वगैरह को संभालते हैं, दोस्त टीम्स लेड बाय हाजी अब्बास, अली हुसैन, बहुत सारे नाम हैं जिनका मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता हूँ,
हमारे यहाँ पे बाकी जो मेंबर्स हैं, आई वेलकम यू ऑल टू दिस occasion of farewell ceremony to our respected and lovable Dr. Atiq Vasudeva and his team, who has been associated with us for the last several years, almost nine years now, since 2014. Clerical mistake होते रहते हैं. I want to correct the statement given by Dr. Uli. गलती हुआ है. It is now 9 years. Since 2014, we have been conducting this orthoplastic camp in collaboration with Dr. Atiq Vasudeva from Medanta. Medanta Hospital, जहाँ जो वेल नोन एक फिगर है डॉक्टर त्रिहान, जो इमिनेंट एक कार्डियोलॉजिस्ट है, उनका भी परमिशन इसमें लिया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो हमारे मिस्टर नदीम है जो मेरिल से, उनका मैं बहुत ही मशकूर हूँ कि उन्होंने इस कैम्प को शुरू करने के लिए जो मेरे साथ कांटेक्ट किया था 2013-14 में, during the when there was a flood situation, I think in J&K 14. तो थैंक यू वेरी मच नदीम सर. आपका बहुत ही मशकूर हूँ, क्योंकि जब भी यहाँ पे कैम्प होता है तो आप हमेशा आते हो. तो नॉर्थ इंडिया को ये कवर करते हैं, और नॉर्थ इंडिया ही नहीं, ये हर हफ्ते में मैं जब फ़ोन करता हूँ, ये कभी कहाँ पहुँचते हैं. शायद अफ़गानिस्तान तो मैंने कभी नहीं देखा सर, बाकी हर जगह पहुँचा बोलता है. अफ़गानिस्तान वाला शायद ये नहीं बोलता होगा बाकी. तो आउटसाइड इंडिया भी इनका कवरेज है. मेरिल ए बिग नेम इन द हिस्ट्री ऑफ इम्प्लांट इन इंडिया एंड अब्रॉड. हमने फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आज तक हमने जो डॉक्टर अतीक सर के साथ जो ऑर्थोप्लास्टी जॉइंट रिप्लेसमेंट कैम्प किए हैं, वो उसका ये 9वां एपिसोड है. तो इन टोटल वी हैव डन ऑलमोस्ट 221 ऑर्थोप्लास्टिक केसेस टिल डेट. आज का जो कैम्प हुआ है, this camp officially has to be started from 24th morning and conclusion 25th evening. But amazing, I know words. सर से कांटेक्ट हुआ, नदीम से कांटेक्ट हुआ, एंड सर सेड कि वेल माय फ्लाइट एट अराउंड 8 landing at this Kushok Bakula airport, and it will take around 4 to 5 hours to reach Kargil, and then मैं बैग छोड़ दूँगा and we will start cases in theatre. Sir, this is unbelievable. And moreover, जो केस हमने रखे हैं, 22 तारीख को सर पूछे, शाम को हमने हमारे लिए अमेजिंग केसेस थे टू ऑपरेट अपॉन दोज 2-3 केसेस. बायलेटरल नी हमने रखे थे, कम्प्लेक्स सर्जरी थे वो 2 केसेस, और एक ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी सर ने 22 के शाम को ही कंक्लूड कर दिया, जिस दिन सर पूछे उसी दिन. और नेक्स्ट डे 23rd को हमारा इनॉग्रल सेरेमनी था बाकरे कम्प्लेक्स पे. एट अराउंड 8:30 9 sir started his OPD till lunch, finished all the OPD cases, और फिर लंच के बाद डायरेक्ट OT. और 23rd को भी हमने बहुत सारे
ऑर्थोप्लास्टिक केसेस, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज किए। तो ये बेमिसाल हैं, सर का डेडिकेशन है। और इस एज पे सर जब हम ही शर्मिंदा होते हैं, हम ही थक जाते हैं, बट थकने का नाम शायद सर के डिक्शनरी में नहीं है। रात भर तकरीबन वी लेफ्ट एट अराउंड 2:30 quarter to it was around 2:45 जब हमने 23rd को वो जो केसेस किए। मैं अपने जो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के जो टीम हैं, डॉक्टर अजहर, डॉक्टर रूफ, डॉक्टर शुजात, मेरे जो ओटी स्टाफ है, ऑल द ओटी स्टाफ और एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट का जो कंसल्टेंट्स हैं, उनके तो बात ही नहीं है। खासकर डॉक्टर आसिफ अगर नहीं तो कोई कैंप नहीं, दिस इज़ क्लियर कट। तो डॉक्टर आसिफ का मैं बहुत ही आभारी हूँ। दिन रात आपने काम किया। एनेस्थीसिया के बगैर एनाल्जेसिया बहुत इम्पोर्टेंट है सर। एनाल्जेसिया ना हो फिर हम घर नहीं पहुँच सकते हैं। और खुशकिस्मती ये है कि इस बार कोई पेशेंट सीवियर कोई पेन कर ही नहीं रहा है। थोड़ा पेन तो हर किसी को होगा, बट इस बार कोई भी, बिल्कुल सारे पेशेंट मुस्कुराहट। कोई पेशेंट तो बोलता है मुझे पेन ही नहीं होता। फर्स्ट केस वी डिड, हिज मेन कंप्लेंट वाज आई एम पेनलेस। आई डोंट नो, मतलब आप लोगों ने मुझे क्या दिया है, आई एम वेरी थैंकफुल। मैं और शायद डॉक्टर अजहर गए थे राउंड पे, तो द पेशेंट सईद अब्दुल्ला ही सेड कि आप लोगों ने मैजिक किया, आई डोंट हैव एनी पेन। हिज मेन कंप्लेंट वाज पेनलेस। हाँ, इस कैंप का एक और स्पेशलिटी है, एक और पिक्युलरिटी है एक, और हमने इसमें नाम, बट मैं ये कहूँगा फॉर द सेकंड टाइम वी डिड टोटल हिप रिप्लेसमेंट 30 ईयर ओल्ड गाय, जो चंडीगढ़ जाके सर्जरी नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ कॉस्ट फैक्टर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। वो यहाँ सर का नाम सुन के वो यहाँ आया हुआ था, एंड मैंने तुरंत उनका एक्सरे सर को भेजा, एंड सर agreed to carry on with that procedure, and we did successfully for the second time total hip replacement in Ladakh. ये सेकंड टाइम हमने हिप रिप्लेसमेंट किया है। पहले इट वाज इन 2017 and 18, आई डोंट रिमेंबर। फर्स्ट टोटल हिप रिप्लेसमेंट हमने यूरोपल तक गाँव से था, उसका टोटल हिप रिप्लेसमेंट किया था, एंड दैट केस इज डूइंग वेरी वेल नाउ। This hip replacement is cost of free of cost। उसमें बाकरिया का भी कंट्रीब्यूशन है, सर के टीम का भी कंट्रीब्यूशन है, और आयुष्मान का भी कंट्रीब्यूशन है। Secondly, actually the camp is being conducted as joint replacement surgery, but सर के साथ जब मैंने लास्ट ईयर डिस्कस किया, तो क्योंकि हमारे पास बहुत सारे और भी केसेस आते थे जो यहाँ हम कर नहीं पाते हैं, लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, शोल्डर के और मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज के। तो लास्ट ईयर हमने शोल्डर का रोटेटर कफ टीयर लास्ट ईयर भी एक केस का किया था, और मिनीसेक्टमी का भी एक केस किया था। तो उसी तरह से इस साल भी मैंने शोल्डर के 2 और मिनीसेक्टमी के 2 केसेस इस साल भी सबने परफॉर्म किए हैं। इन नटशेल इन सर्जरीज़ का अगर मैं आपको कहूँ, एज ए पेशेंट इफ़ यू गो आउटसाइड यूटी लद्दाख, समवेयर इन दिल्ली, क्योंकि हर कोई प्रेफर करता है कि मेरा बेस्ट सर्जरी हो, बेस्ट इम्प्लांट यूज़ हो, द बेस्ट सर्जन कंडक्ट माई सर्जरी। तो इधर वी प्रेफर टू गो टू दिल्ली, चंडीगढ़, अमृतसर। ये हमारा मेन लद्दाखियों या कश्मीर का मेन मुद्दा रहता है। तो मान लीजिए अगर आप यू वांट टू गो टू दिल्ली, और मान लीजिए मैं आपको मेदांता में मैं अगर रेफ़र करता हूँ डॉक्टर अतीक सर के पास, या मेदांता मेडिस्ट्री या समवेयर एल्स इन दिल्ली और एनीवेयर एल्स इन इंडिया, टेक एन एग्जाम्पल, वी विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मेदांता इट्सेल्फ। एक यूनिलेटरल सर्जरी का, यूनिलेटरल रिप्लेसमेंट सर्जरी यानी एक साइड नी का सर्जरी जो है वो
2.5 लाख टू 3 लाख हॉस्पिटल चार्जेस होता है। अब आप इसमें अंदाज़ा लगाइए, आप दिल्ली जाओगे तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट तो पूछोगे नहीं, आपको या तो बाई एयर टिकट लेने या बाई रोड जाना है, और वहाँ का स्टे खाना वगैरह अगर आप लेंगे तो इट विल गो टू ऑलमोस्ट 4-5 लाख तो आपको चला जाएगा। और अगर आप यू वांट टू डू बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, इट विल कॉस्ट अराउंड 6 लाख हॉस्पिटल चार्जेस, और ऊपर से जो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा वो खुद इमेजिन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हम इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं, द सेम इम्प्लांट विच इज़ बीइंग यूज्ड एल्सवेयर इन इंडिया, इन मतलब जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, मेदांता है, एम्स से, बाकी हॉस्पिटल में वो हम वही इम्प्लांट यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। तो वही इम्प्लांट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। थैंकफुल टू मेरिल और नदीम सर और उनका टीम, जो इम्प्लांट को भी हमें यहाँ पे लो कॉस्ट पे देते हैं। जो वहाँ चार्ज करते हैं उसके बिल्कुल बरक्स बहुत ही लो कॉस्ट पे हमें देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सर्जरी जिसका कॉस्ट आपको 6 लाख लगता है, वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। द ऑपरेटिंग सर्जन हु चार्जेस देयर दिस मच अमाउंट इज़ बीइंग कैरिड आउट फ्री ऑफ कॉस्ट हियर एट योर डोर स्टेप। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर हमने आज 44 केसेस अगर हम किए हैं, 44 इंटू अगर 3 लाख ही लगा दें तो ये तकरीबन 6 करोड़ से ऊपर जा रहा है। तो ये हमारे लोगों के लिए एक मतलब पॉजिटिव पॉइंट है। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको यहाँ से वहाँ जाने का, डॉक्टर को ढूंढने का, द बेस्ट सर्जन एट योर डोर स्टेप डूइंग द बेस्ट सर्जरी, तो सर हमारे टीम की तरफ से आपको सल्यूट। और मैं ये बोलना नहीं चाहूँगा कि सर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना नहीं, यहाँ पे आके आप सर्जरी करते हैं, मेरिल से हमें इम्प्लांट मतलब इस तरह से जब भी हम कहते हैं कि हमें इस तरह से चाहिए तो मतलब कभी ना नहीं करते हैं, क्योंकि इनको कोई कमी नहीं है। ये थ्रू आउट इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, बट इम्पोर्टेंस दे के आप यहाँ पे आते हैं पूरे टीम को लेके, दिस इज़ अनबिलीवेबल। सेकेंडली सिर्फ यही नहीं, सर की तरफ से हमेशा हर साल एक नी फ्री यहाँ पे है, यानी एक नी डोनेट करते हैं। सिर्फ यही नहीं, मैं मेरिल का भी बहुत ही मशहूर हूँ, जिसमें जो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं मिस्टर सुमित, जब भी मैं कहता हूँ कि इस पेशेंट को, ये बेचारा गरीब है या इसके पास पैसा नहीं है, तो बोलते हैं सर आप जो करना है, मतलब कभी ये स्टक नहीं होते हैं कि इस पॉइंट पे नहीं जी इतना देना है कि हमारा कॉस्ट इतना है। ये मतलब दिस इज़ ये आप किसी और के साथ हम नहीं कर सकते हैं ये चीज़ें। तो अगर हम उन सारी चीज़ों को, जहाँ इन्होंने कंसेशन किया, जहाँ पे इन्होंने मतलब किसी पेशेंट को छोटे मोटी चीज़ें जो फ्री में दिया, अगर इनको देखें तो लमसम में कम से कम 2-3 नी सबको सम अप करके 2-3 नी इनकी तरफ से फ्री हो जाते हैं। तो बाकी जो टीम है, ऑपरेटिंग टीम, सर के साथ जो असिस्टेंट्स हैं, जो ओटी, उनका मैं बिल्कुल कल सर एक्चुअली एक जॉब मैं आपको सुनाऊंगा कल शाम को जब आप लोग चले गए। तो एक्चुअली हमारा लास्ट केस था एक यूनिलेटरल नी रिप्लेसमेंट। सर ने कहा कि वाई टू गो फॉर यूनिलेटरल, लेट अस डू ए बायलैटरल केस एंड देन विल स्टॉप। तो हो गया, बायलैटरल हो गया, हमने केस ख़त्म कर दिया, सर चले गए। बाकी सब थे, नदीम और मिस्टर नदीम एंड सर लेफ्ट फॉर होटल। तो बाकी थे, मैं था, डॉक्टर आसिफ था और कुछ हमारे थे ट्रस्ट थे। हम यूनिलेटरल को लाए और तो सर मतलब मैं कह रहा हूँ कि थकते नहीं है। एंड वी लेफ्ट एट 3:30। मतलब हमसे ज़्यादा ये लोग काम करते हैं वहाँ पे, कभी थकावट नहीं है, खाने का कोई परवाह नहीं है, चाय पीने का या पानी पीने का बिल्कुल थोड़ा सा चेहरे पे शिकन नहीं होते हैं। तो कोई लफ्ज़ नहीं है सर, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस।
बाकी हमारा काम तो चलते रहता है। होपफुली जब तक ऊपर वाले ने ज़िंदगी दे हो तो आपके साथ हमारा एसोसिएशन रहेगा सर। और आपने वादा किया है, आपका एसोसिएशन ही नहीं है, यू आर ए मेंबर ऑफ बाकरा हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर इंक्लूडिंग नदीम एंड सुनील, तो हाईली थैंकफुल। मैं इसी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत ही मशहूर हूँ कि हमें इस गेम को कंडक्ट करने के लिए बहुत ही सहयोग दिया, कोऑपरेट किया। पूरा पैरामेडिकल स्टाफ का हमें, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल सीस साहब का, एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स का, हमारे सीएमओ साहब का, और एमएस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल। बहुत ही कठिन टाइम निकला ये हमें। एक मशीन है हमारा ऑटोक्लेव जो हमें बहुत मैं बोलूँगा नहीं बट तरसाता है हमें। एक्चुअली हमारा जो एनेस्थेटिस्ट होता है, एनेस्थेटिस्ट का हमें बहुत मतलब डर लगता है कि हमारे पेशेंट को एनेस्थीसिया दे न दे, लेकिन हर बार हमें ऑटोक्लेव का डर रहता है। अब एनेस्थेटिस्ट का नहीं कि ऑटोक्लेव हमारे सामान को स्टरलाइज करे या ना करे। तो काचो साहब यहाँ आए हुए हैं, हमारे सीएमओ साहब भी हैं और एमएस भी हैं। हमारे एक ऑटोक्लेव साहब हैं वहाँ पे, बहुत ही बीमार है वो, उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है सर। बेचारा उसको मतलब हाँ ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट वालों के पास हैं। उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि वेल्डिंग बहुत बार किया हमने तो वो काम नहीं कर पाया। तो मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारे वहाँ पे वो हमारे बैकबोन है, उसको अगर जल्दी से उसका इलाज हो तो अच्छा रहेगा। सीएमओ साहब यहाँ, एमएस साहब भी यहाँ पे हैं। हाँ आईसीयू में ही है वो, आईसीयू में उसका इलाज नहीं हो पाया। बाकी में आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। सर आप लोग जा रहे हैं, हमें बहुत खेद है, अफसोस है। अगर 1-2 दिन और रहते तो हम 2-4 केसेस और कर लेते, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को वापस जाना पड़ा। अभी 2 घंटे नहीं सर ने वो कल बोला था, वो जब यूनिलेटरल पोस्टपोन करके बायलेटरल का, तो कहा कि 9 बजे आपका कंक्लूडिंग सेरेमनी है, 1 घंटा लगेगा, वापस आके करके फिर हम वहीं से चले जाएंगे। ये जाते समय सर ने बोला था। तो इसका गम नहीं है, बट बहुत सारे केसेस मैंने वापस किए हैं। होपफुली और भी केम्स होंगे तो हम उसमें करेंगे, बट बहुत सारे कम्प्लेक्स केसेस हैं सर, आपके बगैर होगा नहीं। शोल्डर के बहुत सारे केसेस हैं, नी के हैं, जो शोल्डर जो रोटेटर कफ आप जो करते हो, जो प्रोसीजर आप करते हो, डॉक्टर अजहर और डॉक्टर रूफ ने ठान लिया है ये दोनों। सर हमारी तरफ से कुछ गलतियां हुई होंगे, तलख कलामी हुआ होगा सर, हॉस्पिटैलिटी में बहुत सारी कमियां रही होंगे, क्योंकि हम इंसान हैं। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मेरे पास कोई और लफ्ज़ नहीं सर। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. I want to proceed the program by reciting a Urdu couplet, which is our motto at Bakaria Healthcare and Research Center. बदन मेरी मिट्टी का, सांसें मेरी उधार हैं। बदन मेरी मिट्टी का, सांसें मेरी उधार हैं। घमंड करूं तो किस बात का, यहाँ हम सब तो किराएदार हैं। तो कहने का मतलब है सर कि जो हमारी लाइफ हमें दी हुई है, शॉर्ट स्टिंट इस दुनिया में, अगर वो किसी और के काम आएगा तो वो उसका वैल्यू है, अदरवाइज़। तो यही हमारा मोटो रहता है सर बकरिया हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर की, हमारे थोड़ा सर्विस हो जाए, पब्लिक का हेल्प हो जाए सर की कोऑपरेशन के साथ। तो यही इसी मोटो के साथ हम बकरिया में काम करते हैं। तो ज़्यादा ना वक्त लेते हुए इसके बाद मैं डाइस पे दावत देना चाहता हूँ सीनियर मेंबर गार्डियन काउंसिल इमाम खोमेनी मेमोरियल ट्रस्ट हाजी असगर अली करबलाई सर को, कि वो डाइस पे आके हमारे पार्टिसिपेंट्स की हौसला अफजाई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम
मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। आज के मेहमान खुसूसी डॉक्टर अतीक वासुदेव, उनकी पूरी टीम, मिस्टर नदीम, एग्जीक्यूटिव काउंसलर जाकिर हुसैन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर काचो इम्तियाज़ साहब, चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर लियाकत साहब, डॉक्टर अब्बास साहब, बाखरिया के प्रेसिडेंट, उनकी पूरी टीम, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, वॉलंटियर्स, चेयरमैन इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट, हुज्जतुल इस्लाम शेख सादिक रजाई, बाकी मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं ले लूँगा। अभी तक जो कुछ भी डॉक्टर उलियात साहब, डॉक्टर अहमद अली साहब ने डॉक्टर अतीक और इनकी पूरी टीम के बारे में, और इन्होंने जो कुछ भी कंट्रीब्यूट की है स्पेशली नी रिप्लेसमेंट के लिए, हिप और शोल्डर सर्जरी के लिए, वाकई ये काम इंसानी खिदमत के लिए एक बेहतरीन ज़रिया है। आज की दुनिया में जब हम चारों तरफ नज़र दौड़ाते हैं, इंसान तो है लेकिन इंसानियत बहुत मुश्किल से पैदा हो रही है, और बिलखुसूस जो गज़ा में हो रहा है, जहाँ इंसानियत को जिस बुरी तरह से कुचला जा रहा है, ऐसा लगता है जैसे हम दरिंदों और वहशियों के बीच में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और सारी दुनिया साइलेंट, खामोश तमाशाई बनी बैठी है। एक पूरी कौम भूखमरी से गुज़र रहा है। ये दर्द और ये एहसास वही लोग समझ सकते हैं जिनके दिलों में दर्द, एहसास और इंसानियत हो, और इसका इजहार करने, एक्सप्रेस करने के लिए इंसानी तारीख़ में बेहतरीन काम वो डॉक्टरों का है, क्योंकि बराह रास्त इंसान के दर्द को मदावा देने और इसके इलाज के लिए यकीनन डॉक्टर वासुदेव और इनकी पूरी टीम, करगिल की कौम की तरफ से, लद्दाख यूटी की तरफ से आप बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं। हम शुक्रिया के अल्फाज के कि आपके इस खदमात को, जो कुछ भी आपने यहाँ पे की है, आज भी आपने बता दी कि इसी 2 दिन में 44 लोगों को, यानी उन लोगों को जो चलने फिरने से माजूर थे, चलने फिरने और दौड़ने के काबिल बनाए, यानी वो इंसानों के ज़ुमरे में फिर दाखिल हो सके। और ये दर्द वही इंसान समझ सकता है जो इंसानी ज़ुमरों से अलग हो चुका है। शायद हम सभी फ़िज़िकली साउंड हैं, इसीलिए हमें उतना उसकी कीमत और वैल्यू का पता ना हो, लेकिन जो इस दर्द से जूझ रहा है, इन हालात से गुज़र रहा, वही समझ सकता है। तो डॉक्टर साहब, आपके और पूरी टीम का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि जिस तरीके से आप बाकरिया में पिछले 9 साल से खिदमत देते आ रहे हैं, और न सिर्फ
इलाज और मुआलजा कर रहे हैं, बल्कि हमारी डॉक्टर्स को, हमारे पैरामेडिक्स और हमारे वॉलंटियर्स को आप साइकोलॉजिकली, मेंटली भी इनको बहुत ही इनकरेज करके स्टेज पे ले आए कि जब आपके डाउन से एक आदमी आके, एक टीम आके बिना थके, बिना रुके, बिना आराम किए इस आल्टीट्यूड पे सीधे थिएटर पहुंच सकता है, तो हम तो इस पहाड़ों में ज़िंदगी बसर करने वाले इसी पहाड़ के बच्चे हैं, हम इनसे आगे बढ़ सकते हैं। और ये हौसला और ये हिम्मत आप और आपकी पूरी टीम ने दिलाई है। इसके लिए मैं फिर एक बार आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि जो खिदमत का सिलसिला है वो आगे भी जारी रहेगी इंशाअल्लाह। हम सिर्फ़ आपको दुआएं दे सकते हैं, ये कौम आपको दुआएं दे सकती है, ये कौम हर उस इंसान को दुआएं दे सकती है जो इंसानियत और बशरियत की खिदमत में, ह्यूमैनिटी की सर्विस में अपना कुछ न कुछ योगदान दे रहा है। मैं फिर एक बार बाकरिया की तरफ से, करगिल के आवाम की तरफ से, डॉक्टर अतीक वासिद और इनकी पूरी टीम का, नदीम साहब का और बाकी जितने भी डॉक्टर्स ने यहाँ पे, पैरामेडिक्स ने और स्पेशली बाकरिया के वॉलंटियर्स जो रात दिन अपने सारे कामों को छोड़ के यहाँ पे काम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चीफ मेडिकल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरिटेंडेंट, उनकी पूरी टीम, अभी यहाँ पे शायद डीसी साहब, एसपी साहब नहीं आ पाए हैं, इनकी तरफ से काचो इम्तियाज़ साहब हैं, आपकी हौसला अफजाई के लिए और ये बताने के लिए कि पूरी कौम इंसानियत और बशरियत की खिदमत के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जो डॉक्टर अतीक वासुदेव सर और उनकी टीम ने हमारे करगिल के पब्लिक के लिए जो सर्विस दिया है, उसका आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि जब शुरू में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कैंप होता था तो पेशेंट थोड़े स्केप्टिकल होते थे। शुरू में जब पहला हुआ था एक अशोका मिशन के साथ, तो उस टाइम पेशेंट आने से डरते थे कि जॉइंट रिप्लेसमेंट नया प्रोसीजर है, पता नहीं इससे क्या हो जाएगा। लेकिन अभी आलम यह है कि ओवरबर्डन्ड है, क्योंकि जो सर ने प्रोसीजर्स किए उनका रिज़ल्ट देख के, जो चल नहीं पाते थे वो उनको चलते हुए देख के लोग भीड़ में आ रहे हैं। जिनको जॉइंट की, नी जॉइंट की, हिप जॉइंट की तकलीफ़ हो, आगे बढ़ के आके सर्जरी कराना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये रिज़ल्ट देखा है। सर ने जो सर्जरी किया उनका रिज़ल्ट अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास के लोगों को चलते फिरते, जो पहले चलते नहीं थे उनको चलते फिरते देख के, तो अब ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इम्पैक्टफुल सर का सर्विस रहा है। तो इसी के साथ में हमारे हरदिल अज़ीज़ मेहमान डॉक्टर प्रोफेसर अतीक वासुदेव सर को डाइस पे दावत देना चाहता हूँ कि वो हमें अपने एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करें और हमारे वॉलंटियर्स को, डॉक्टर्स को थोड़ा इंस्पायर करें। सर अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। सबसे पहली बात तो ये है कि ये मेरा सेल्फिश नेचर है कि मैं यहाँ आता हूँ, क्योंकि इतना प्यार मिलता है आप लोगों से कि आना पड़ता ही है। और ये जो चीज़ है ये बड़े टाउन्स, बड़े सिटीज़ में नहीं मिलती है। वहाँ पे रोज़ की ज़िंदगी, सुबह निकलो शाम को, आपको ये भी नहीं पता कि आपका जो नेबर है वो क्या करता है, कौन रहता है, कौन है, कैसे है, आप उस पर डिपेंड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ये चीज़ बहुत मिस करते हैं, जो प्यार है आप सबका। सो मेरे को बहुत खुशी होती है कि मैं यहाँ आता हूँ। मेरे को ही नहीं खुशी होती है, मेरे घर वालों को भी खुशी होती है। मेरी वाइफ हर साल आती हैं सर, इस साल नहीं आ पाई और उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मैं नहीं आ पा रही हूँ, घर में कुछ इशू है तो आप मत जाओ। जैसे उसे पता है कि डेट्स फिक्स्ड हैं तो वो फिक्स्ड हैं, बात ख़त्म, जाना ही है, इसमें कोई वो नहीं, दो राय नहीं। सो ये इट इज़ माई गुड लक कि मैं यहाँ आ पाता हूँ। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं यहाँ आ पाता हूँ, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात के लिए। बहुत लोगों हैं जिनका शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है और वो मैं करना चाहूँगा। मैं समय ज़रूर लूँगा, भूख सबको लग रही है, लेकिन फिर भी मैं समय लूँगा, क्षमा करें उसके लिए। सबसे पहले तो ये बात है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। जो एक चेन होता है वो
कहीं भी एक उसका कुछ क्लिक टूट जाए तो वो संभव नहीं है। राइट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ADC साहब यहाँ हैं, इनके एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं। बकरिया हेल्थ जो इतना काम करता है, उनके वॉलंटियर्स, उनके डॉक्टर्स, उनके हेड इमाम साहब जो इस चीज़ को अलाउ करते हैं और इसको नॉट ओनली अलाउ करते हैं बट इसको प्रोपोगेट करते हैं कि नहीं ये होना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है, इससे हमारी कौम का फ़ायदा होता है। कोई कहते हैं ना कि हमारे लिए क्या हुआ है, ये तो सोचो आपने क्या किया है। ये बहुत ज़रूरी बात है। इनके वॉलंटियर्स को मैं देख रहा था, पेशेंट्स का तो ध्यान रखते हैं, उनके अटेंडेंट्स का भी ध्यान रखते हैं, उनको चाय पानी खाना सब कुछ देते हैं, आगे पीछे भागते हैं उनके लिए। कहाँ देखने को मिलता है। हॉस्पिटल में जाइए, हॉस्पिटल के डिस्ट्रिक्ट के CMO साहब जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, अगर आप नहीं करेंगे, आपका सपोर्ट नहीं होगा तो आप खड़े नहीं कर सकते हैं सबको। मैं यहाँ खड़ा नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता हूँ तो फिर काम कैसे हो सकता है। तो आपका शुक्रिया अदा भी बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल का जितना स्टाफ है, स्पेशली द पैरामेडिक्स, दे आर द बैकबोन ऑफ द हॉस्पिटल। पैरामेडिक्स को छोड़िए, उनके नीचे जाइए, जो रूम जो OTs को क्लीन करते हैं, जो स्वीपर्स होते हैं, क्लास 4 एम्प्लॉयज़ हैं, टेक्नीशियंस हैं, जो एनेस्थेटिक टेक्नीशियंस हैं, जो सब लोग हैं जो दिखते नहीं हैं लेकिन वो काम करते हैं। नर्सिंग स्टाफ है, वो आपको दिखेंगे नहीं, आपने सर्जरी की, बात ख़त्म। पेशेंट को तो वो लोग झेलते हैं ना, तो आपका शुक्रिया अदा उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बात करते हैं डॉक्टर्स की। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको बताया कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है 2-2:30 बजे, आपके स्टाफ को कोई ज़रूरत नहीं है 2:30-3 बजे तक रहने की, और आप खुशी खुशी वहाँ खड़े हैं। डॉक्टर्स का नाम लूँगा, डॉक्टर आसिफ साहब, थैंक यू, एक्सलेंट एनेस्थीसिया एनालिसिस्ट, यू आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मैंने काफ़ी बार ट्रेनिंग की है, काफ़ी बार गया हूँ अपने जगह। आई वर्क इन वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स, बट हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अहमद अली साहब, कहाँ हो साहब आप? छुपिए मत, आगे आइए। ये सिलसिला जो आप देखते हैं, जो आज सुनने को मिल रहा है, ये कल से शुरू हो जाएगा। आज तो हम चले जाएंगे, पर ये नेक्स्ट कैंप का काम शुरू हो जाएगा। टायरलेस एफर्ट्स, बैक एंड फोर्थ एक्सरेज आते हैं, हम डिस्कस करते हैं और आगे काम चलते हैं। तो ये नहीं है कि आज ख़त्म हुआ तो कैंप ख़त्म, नहीं, अगले कैंप की तैयारी शुरू। तो ये आसान काम नहीं है अपने रूटीन में, अपने सारे कामों में करने के लिए, और फिर इसको भी ऐड करना, ये बिल्कुल आसान नहीं है। सो आपका भी एक बहुत बड़ा शुक्रिया। इनकी टीम, रऊफ साहब, अच्छा लगता है आपसे मिलके, कुछ मैच्योर डिस्कशंस होती हैं। एंड ऑफ कोर्स अज़हर, कहाँ हो भाई, शहदाद साहब, आप सब खुशी खुशी आते हैं, केसेस में आते हैं और हेल्प करते हैं और कहते हैं करो, लगवाते हैं, करते हैं। मेरा तो छोटा सा काम है, आता हूँ सिर्फ सर्जरी करने, पहले का काम बाद का काम सब आप करते हैं। I am a very small part in this whole chain. So thank you to all of you. Wonderful work. And of course, I'd like to thank people who come with me. Nadeem साहब पीछे पढ़ के यहाँ ले आए, 25 साल की दोस्ती है, ले आए, लेकिन I know how he works, और भाईपन ज़्यादा है तो इनको ना करना असंभव है। So बोलते हैं चलना है तो बस चलना है, लेकिन इनका मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत कहते हैं कि आपने आना है। तो हमने भी एक शर्त डाल दी, आप नहीं आओगे तो मैं नहीं आऊँगा, तो आना ही पड़ता है इनको। गालियाँ बहुत खाते हैं घर में, पता है मेरे को। एक ज़माने में इन्हें हमें प्रॉमिस किया था यहीं कारगिल कि दुनिया का बेस्ट वेजिटेरियन फूड खिलाऊँगा, वो दिन का इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह 25 साल और जिएंगे।
नो बट रियली एक्सट्रीमली मोटिवेटिंग। और ये सब ऑर्गेनाइज करना, सब इम्प्लांट्स, ये वो, इट्स नॉट इजी। सुमित, ही इज़ द डिस्ट्रीब्यूटर जो सारे इम्प्लांट्स यहाँ लाता है, गालियाँ खाता है मेरे से बहुत, क्योंकि जो सर्जन्स होते हैं ना, दिमाग ख़राब होता है हमारा। एक भी इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलेगा तो बस बीपी पता नहीं कहाँ जाएगा, तो बहुत डांट खाता है, पर बेचारा करता है, ले आता है। थैंक यू सो मच। राज भाई शुरू से साथ है, ही इज़ वन ऑफ द मेन जो आते हैं, असिस्ट करता है, सारा जो टेक्निकल काम करता है, बहुत हेल्प करता है और डांट भी खाता है, लेकिन प्यार से खाता है। थैंक यू। नए एंट्रेंट है हमारी टीम में दिगंबर जी। ये होता है ना कि जब सब परेशान होते हैं तो ये एक बंदा कुछ बोलता है तो सब हंसी आ जाती है मुंह पे। तो ये मेरे साथ थिएटर में होते हैं, मेरिल से ही हैं, लेकिन मेरे साथ होते हैं यहाँ पे भी, और मेरे मेदांता भी मेरे थिएटर में होते हैं। एंड वेरी हेल्पिंग हैंड, कुछ भी बोल सकता हूँ इसको मैं, कुछ भी बोल सकता हूँ, हंस देता है सारा कुछ। कभी थोड़ी लाइन क्रॉस हो जाती है, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए, लेकिन हंस देता है, समझता है कि सर्जन पागल होते हैं तो ठीक है, छोड़ देता है। तो थैंक यू टू यू। थोड़ा और कुछ 2-3 थैंक्स और बाकी हैं। डॉक्टर त्रेहन का, अगर वो परमिशन नहीं देंगे तो मैं आ नहीं सकता। एक बार भी उन्होंने नहीं कहा। मैंने उनको शुरू में जब मैं गया था, अहमद साहब ने चिट्ठी भेजी मेरे को, इनवाइट की, मैंने कहा सर मेरे को जाना है। 1 सेकंड नहीं उन्होंने लगा, कहता जाओ। कारगिल वॉर में उन्होंने यहाँ काफ़ी कुछ ट्रक्स भिजवाए थे, कुछ कंट्रीब्यूशन किया था। एंड कोविड में भी कुछ उन्होंने किया था। मतलब एक बार भी उन्होंने ना नहीं कहा। बाकी टाइम पे छुट्टी मांगने जाता हूँ तो सुनना पड़ता है, यार क्या बात है, पंजाबी अगर आप थोड़ा बहुत समझते हैं, की अलग बड़ी छुट्टियाँ ला रहे हैं आजकल, मतलब कि बहुत छुट्टी ला रहे हैं आजकल, क्या बात है। तो बोलना पड़ता है सर महीने में पहले ली है। पर जब भी मैं कारगिल का उनका सर कारगिल जाना है, इतने दिन जाना है, हाँ हाँ जाओ, बिल्कुल जाओ, गो एंजॉय योरसेल्फ, जाओ। तो रियली आई हैव टू थैंक यू। बस लास्ट 2 थैंक्स हैं। सो सॉरी। मेरे कोऑर्डिनेटर हैं अंजनी। मैं यहाँ होता हूँ तो पेशेंट्स की गालियाँ वो खाता है, तो आई हैव टू थैंक हिम कि उसको इस बार ही छोड़ के आया हूँ कि भाई पूरे से मोर्चा तो आप ही संभालोगे पीछे से। तो वो रोज़ फ़ोन सुबह दोपहर शाम, जिसे कहते हैं ना, ट्रबल शूटिंग करता है। सो आई हैव टू थैंक हिम। सो अंजनी इज थैंक्स। एंड ऑफ कोर्स आई नीड टू थैंक माई वाइफ वेरी इंपॉर्टेंटली। I have to thank her because she has never said no to me to coming to this place. Not once. कभी ना नहीं करती है. And it's a situation where I should have been home. मतलब मेरे को इस समय घर होना चाहिए था. I had some problem in the family. But उन्होंने कहा तुम जाओ, ये ज़्यादा ज़रूरी है. You have to give back to the society. And lastly, last, all the patients, I need to thank them. उन्होंने मेरे में ये विश्वास दिखाया। मैं खुदा से यही एक बात कहूँगा कि मैं उस विश्वास पे खड़ा हो पाऊँ। थैंक यू। वन लास्ट थिंग, ये थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है जो हमेशा मेरी वाइफ और मैं करते हैं बाकरिया को। स्मॉल टोकन ऑफ आवर गेस्चर फॉर अ थैंक यू टू यू ऑल फॉर द लव दैट यू शो अस। एंड ये नदीम भाई से ऑल्सो, so these are small contributions from our side to Ahmed साहब. Thank you so much. स्पीच के ऑर्डर में हमारे वर्दी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सर इम्तियाज़ सर को स्पीच रखा था, लेकिन सर कई कमिटमेंट्स आए, कहीं आज वीआईपी की टूर थे तो उनमें थके सर, बोल रहे थे कि थक गए, तो सर को हम तकलीफ़ नहीं देंगे सर। थैंक यू सो मच। तो इसके बाद हमारे ऑर्डर में एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन हमने भी रखा है सर फॉर द टीम कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, और जो यहाँ पे हमारे थिएटर असिस्टेंट्स, डॉक्टर्स, जो भी इस कैंप को कामयाब करने में जिनका कंट्रीब्यूशन रहा, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसके लिए हमने एक मोमेंटो और टोकन ऑफ अप्रिसिएशन रखा है। तो उसके लिए मैं तकलीफ़ देना चाहता हूँ सर चेयरमैन IKMT शेख सादिक रजाई सर, हाजी असगर अली करबलाई सर, डॉक्टर अतीक वासुदेव सर, प्रेसिडेंट बकरिया डॉक्टर अहमद अली एंड सीनियर फिजिशियन डॉक्टर विलायत अली सर। सर आप यहाँ तशरीफ़ ला के हमारे पार्टिसिपेंट्स को मोमेंटो के साथ नवाजें।
इसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से काचू इम्तियाज़ सर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हमें बहुत कोऑपरेशन रहा है हर कैंप में, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने एक मोमेंटो रखा है सर। काचू इम्तियाज़ सर प्लीज़ एक्सेप्ट करें। इसके बाद हमारे डेडिकेटेड एनेस्थेटिस्ट हरदिल अजीज़ स्टार ऑफ द कैंप डॉक्टर आसिफ हुसैन, उनके लिए मोमेंटो रखा है। इसके बाद मैं तकलीफ देना चाहता हूँ मिस्टर नदीम नॉर्थ इंडिया हेड मेरिल, वो उनके लिए भी हमने एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन एक मोमेंटो रखा है उनके कोऑपरेशन के लिए हर कैंप में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट काजहीर द करगिल होटल का हमारे हर कैंप में कोऑपरेशन रहा है सर। हर कैंप में हमें साथ देते हैं, फ्री अकोमोडेशन हमारे गेस्ट को प्रोवाइड करते हैं, ले टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। स्टूडेंट है, सबको हम प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं सबका नाम अनाउंस करूंगा जिनके लिए हमने सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन रखा है। तो हम बाद में क्योंकि 18 मेंबर्स है जिनको हम सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन प्रेजेंट करेंगे, तो अभी बाद में हम देंगे। उनका नाम मैं अनाउंस कर देता हूँ जल्दी। मिस्टर इकबाल, मिस्टर हाशिम हरदसी, गुलजार अहमद, अल्ताफ़ हुसैन, मोहम्मद हुसैन। आप बाद में आके ले सकते हैं, अभी सर प्रेजेंट नहीं करेंगे, वो बाद में जब उनका नाम सिर्फ अनाउंस करके मैं रखूँगा सर। मोहम्मद आप प्लीज़ सर। जो पार्टिसिपेट किए, हमारी इस दावत को कबूल फरमाया, इसका इम्पोर्टेंस समझ सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बड़ा थैंक्स प्रेजेंट करना चाहता हूँ। सबसे पहले हुर्रियतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख सादिक रज़ा चेयरमैन आईक्यूटी का हमें हमेशा गाइडेंस रहा है हर कैंप में, उनकी गाइडेंस और कोऑपरेशन हमें हमेशा रहा है सर। और एक नाम पहले हमने नहीं लिया जब सीक्वेंस ऑफ नाम चल रहा था, क्योंकि वो एलएचडीसी कारगिल के रिप्रेजेंटेटिव हमारे जाकिर साहब एग्जीक्यूटिव काउंसिलर, क्योंकि वो हमारे एज ए वॉलंटियर यहाँ पर नहीं लिया था, लेकिन उनका स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारे ओटी में जैसे अहमद अली सर ने भी जिक्र किया, कुछ इक्विपमेंट्स नॉन फंक्शनल थे, जैसे मॉड्यूलर ओटी में कुछ प्रॉब्लम था सर, तो हमने वो सॉल्व करने की कोशिश किया था बिफोर द कैंप। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सॉल्व करने की कोशिश किया था, लेकिन इमरजेंसी बेसिस पे उन्होंने खुद अपना एफर्ट लगा के, पर्सनल एफर्ट लगा के उन्होंने जल्दी जम्मू में किसी कॉन्टैक्ट करके कुछ इक्विपमेंट, कुछ उसका पार्ट परचेज़ करना था, वो जल्दी करा के तो ये मॉड्यूलर ओटी ठीक कराया था सर, इस कैंप के लिए रेडी कराया था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे चीफ ऑपरेटिंग सर्जन और उनकी टीम, जिनके बिना ये कैंप बिल्कुल हो ही नहीं सकता, डॉक्टर आतिक वसुदेव सर और उनकी टीम, स्पेशली मिस्टर नदीम नॉर्थ इंडिया हेड मेरिल, मिस्टर राज, मिस्टर दिगंबर और मिस्टर सुमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सर। हर कैंप में आप आते हैं, कोऑपरेशन अपना देते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सर का काचू इम्तियाज़ सर यहाँ मौजूद हैं, बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया जो हमेशा कोऑपरेशन रहा। हर कैंप में जो भी हम कोशिश करना चाहते हैं हमेशा आप आगे बढ़ चढ़ के हमें साथ देते हैं सर। इसी तरह हमारे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर काचो लियाकत अली खान, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अब्बास सर, आपका भी बहुत इस कैंप में बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा, कोऑपरेशन रहा सर, आपकी कोऑपरेशन के बिना पॉसिबल नहीं था, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आसिफ हुसैन, जिन्होंने इतना, जैसे सर ने भी फरमाया कि इतना अच्छा एनेस्थीसिया दिया, पेशेंट्स को पेन फ्री रखा, इसीलिए हमारा कैंप पॉपुलर होता है, बिकॉज द पेशेंट्स आर ऑलवेज पेन फ्री आफ्टर द प्रोसीजर। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो स्पेशल थैंक्स मैं कहना चाहता हूँ द करगिल के हाजी जहीर साहब का, जो हमेशा हमारे हर कैंप में उनका कोऑपरेशन रहता है। स्पेशल थैंक्स गोज़ टू सुपरवाइज़र ऑपरेशन थिएटर मिसेस साइदा एंड मिस्टर इकबाल साहब और उनकी धर्मपत्नी सकीना जी का मैं स्पेशल थैंक्स इसलिए कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग मेडिकल रीज़न से उन्होंने लीव लिया था, वो मेडिकल रीज़न से उनको श्रीनगर जाना था, उन्होंने ऑलरेडी उनका छुट्टी सेंक्शन था, वहाँ पे अपॉइंटमेंट भी लेके था, बट बिकॉज ऑफ द कैंप दे स्टेड बैक, कैंप के लिए उन्होंने रहे वो लोग, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो इसी तरह ऑल ओटी स्टाफ जितने भी इस कैंप में मुलविस थे, मुलविस
मुझे इससे लगता है कि कोई क्राइम किया। मेरे कहने का मतलब है कि जो पार्टिसिपेट किया इस कैम्प में, जितने भी ओटी स्टाफ थे, जितने भी जो लोअर स्टाफ, स्वीपर, जितने भी सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट किया, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। स्पेशल थैंक्स टू डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया एंड एनेस्थीसिया, डॉक्टर शाजिया, डॉक्टर अब्बास अली एंड ऑल अदर एनेस्थेटिस्ट। स्पेशल थैंक्स टू डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स लेड बाय डॉक्टर अहमद अली सर, डॉक्टर अजहर, डॉक्टर शुजात, डॉक्टर रऊफ सर एंड और सीनियर मेंबर डॉक्टर विलायत सर। उनका हमेशा गाइडेंस, सजेशन हमेशा उनका हर स्टेप पे रहा है। और स्पेशल थैंक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे वॉलंटियर्स के बिना हमारा कोई भी काम नहीं होता है, क्योंकि हमारे कामयाब होने का एक राज, सबसे इम्पोर्टेंट राज यही है कि हमारे वॉलंटियर्स बहुत ही डेडिकेटेड हैं और अपने घर का काम छोड़ के, सारे कमिटमेंट छोड़ के हमेशा आके एक लफ्ज़ पे लब्बे के आते हैं, काम करते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एम्बुलेंस ड्राइवर स्पेशली मिस्टर अहमद जो किंग ऑफ जोजिला से मशहूर है, और मिस्टर हुसैन, और मीडिया पर्सन, स्पेशली हमारे मीडिया पर्सन्स जो प्रोग्राम में हमेशा साथ रहते हैं, और अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिस्टर नासिर मुंशी, ओनर ऑफ दिस होटल हाईलैंड, उनका हमेशा हमारे प्रोग्राम में कोऑपरेशन रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया।